an architect cooks. आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही क्लासिक रेसिपी है. That was the shepherd's pie. It originated somewhere in Britain and it's a wholesome meal in itself. Normally जो ये authentic recipe है that's made with meat, but I'll be making the vegetarian version of this dish called the shepherd's pie. And of course I'll tell you what the ingredients are, what the nutrients are and why is it a wholesome meal in itself. तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि shepherd's pie the vegetarian version बनाने के हमारे ingredients क्या हैं. So shepherd's pie बनाने के लिए हमें यहाँ पे जैसे I told you it's an assortment of vegetables cooked together with tomato sauce and then topped with a layer of mashed potatoes. That's it. So ingredients are, we have about 2 medium carrots which are chopped finely. We have 200 grams of mushrooms sliced finely. We have about half a cup of frozen peas. We have 1 big onion which is finely chopped. And then spices mein, we have 2 tablespoons of butter, a little of crushed red pepper, some black pepper powder, 1 tablespoon of flour, all-purpose flour, that is maida, 1 teaspoon of finely chopped garlic. We have some salt, 2 tablespoons of tomato sauce. Sauce means not the ketchup but tomato puree. And then some basil. अगर आपके पास thyme हो आप thyme use कर लें. This is my fresh basil from the garden. And we have 4 medium potatoes which have been boiled and roughly mashed, and then I'll show you what has to be done with this next. So this is made actually in 3 steps. सबसे पहले हम vegetables तैयार करेंगे, उसको top करने के लिए फिर हम अपने आलू तैयार करेंगे, and then we'll put it to bake. After this, along with this, we have about 3/4 cup of milk, half cup of water and the oil for cooking. Before I started this process, मैंने bake mode में अपने OTG को 190 डिग्री सेल्सियस पे preheat होना रख दिया है. तो आइए शुरू करते हैं हम बनाना shepherd pie की base. So यहाँ पे हम कोई भी कढ़ाई या heavy bottomed pan, deep fry pan आप कुछ भी ले लें and उसमें around 2 tablespoons of ऑयल हम लोग कोई भी डाल दें, कुकिंग ऑयल, आप सनफ्लावर डाल लें, आप ऑलिव ऑयल डाल लें, एनी ऑयल. एंड इसमें फिर हम लोग सबसे पहले वी ऐड इन द गार्लिक. इसमें बहुत मिनिमल स्पाइसेस यूज होती हैं. इट्स ऑल द फ्लेवर्स ऑफ द वेजिटेबल्स एंड यू नो द गार्लिक एंड द सॉटेड अनियन, दैट इज व्हाट गिव्स इट ऑल द फ्लेवर. तो ये हमने गार्लिक डाल दिया एंड गार्लिक साथ साथ जैसे हो रहा है उसी के साथ साथ हमने ये अनियंस डाल दिए. अनियंस को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे टिल दे आर काइंड ऑफ ट्रांसलूसेंट. दैट विल टेक अबाउट मे बी अ मिनट और 2 टू फ्राई. सो ये गैस हमारी मीडियम टू हाई के बीच में है एंड जस्ट अबाउट अ मिनट टू मिनट एंड अ हाफ इट टुक. एंड ये आप देख सकते हो कि द अनियंस हैव जस्ट स्टार्टेड चेंजिंग कलर. इस स्टेज पे अब इसमें हम अपने डाल देंगे जो कैरेट्स हैं विच आर फाइनली चॉप्ड. इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ फुल मील इन इटसेल्फ. हमारी कैरेट्स हैं विच आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स. वी हैव द मशरूम्स विच हैव अ लॉट ऑफ अदर मिनरल्स along with proteins. We have the green peas which are full of proteins and we have the potatoes which are full of carbs. मशरूम में फाइबर भी बहुत होता है. तो ये सारा कुछ मिला के ये आपका एक पूरा मील हो जाता है. You don't need anything else. Of course if you want you can have it with a side of garlic toast also. That's totally up to you. इसके साथ अब मैंने इसमें डाल दिया अपना मशरूम and now mushroom and carrots go together. We will saute it for about 5 to 6 minutes because we want the flavors of the mushroom to get into the oil and we also want the carrots to soften a little. इसको हमने प्री कुक बिल्कुल नहीं किया था. जो ग्रीन पीस हैं क्योंकि वो हमारे फ्रोज़न ग्रीन पीस हैं वो हम लोग एंड में डालेंगे तो उसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है. तो इस स्टेज पे अब हम लोग 5 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे. तो ये देखिए ये अब हमें कुक करते करते करीब 4 से 5 मिनट्स हो गए. इसको लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं होती, बीच बीच में ऑफ एंड ऑन आप एक आधी बार स्टर कर दो, दैट्स अबाउट इट. अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे जो 1 टेबल स्पून हम लोगों का फ्लावर था, मैदा, एंड द 2 टेबल स्पून ऑफ टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पेस्ट एक्चुअली, ये हम ऐड कर देंगे. अब फिर हम इसको अच्छे से स्टर कर देंगे एंड इस समय गैस को थोड़ी सी हम लोग सिम कर लेंगे. वी विल लेट द सॉस एंड द फ्लावर कोट ऑल द वेजिटेबल्स वेल. इसमें टोमेटो जो
प्यूरी है उसका भी एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है. अलॉन्ग विद द फ्लावर इट टेंड्स टू कोट ऑल द वेजिटेबल्स वेरी वेल. ये देखिए अभी हम लोगों का पूरा फ्लावर कोट हो गया वेजिटेबल्स पे, एंड जो प्यूरी थी वो भी कोट हो गई, एंड काइंड ऑफ ये थोड़ा सा स्टिकी वेजिटेबल्स हो गई एज यू से. इस स्टेज पे अब हम इसमें अपना डाल देंगे ग्रीन पीस. आप इसमें जो वेजिटेबल्स हैं ना वो अपनी चॉइस से इसको आप कर सकते हैं. आपको पेपर्स पसंद है आप पेपर्स डाल दीजिए, आप ब्रोकली है तो वो डाल लीजिए. एंड वी पुट सम ब्लैक पेपर पाउडर एंड द सॉल्ट टू टेस्ट एंड सम बेसिल. ये हमने डाल दिया इसमें. Again we give it a good thick mix. So देखिए already this whole assortment of vegetables is looking so attractive and so colorful, and like I told you it's full of nutrients. ये पूरा आपने खा लिया तो it's a wholesome meal. You really don't need anything else to go with it. ये करके अब इस स्टेज पे जो ये हमारा आधा कप पानी है हम बस ये पानी डाल देंगे, एंड वी विल लेट जस्ट ऑल ऑफ दिस कुक टुगेदर सो दैट सारी वेजिटेबल्स सारे फ्लेवर्स हमारे मिक्स हो जाएं एंड द वेजिटेबल्स आर वेल कुक्ड ऑल्सो. एंड ये डाल के नाउ वील जस्ट लीव इट फॉर अनदर 5 minutes टू जस्ट सिमर फॉर अ वाइल एंड कुक ऑन इट्स ओन. सो फ्रेंड्स जब तक हमारी वो वेजिटेबल सिमर हो रही है उसको मैंने बिल्कुल सिम पे कर दिया है, एंड दे विल सिमर फॉर अबाउट 5 minutes. हम लोग यहाँ पे अपने पोटैटोज तैयार कर लेते हैं. 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप पोटैटोज को एकदम फ्रेश बॉईल करें एंड गरम पोटैटोज में ही सब कुछ मिलाएं. सेकंड ऑप्शन है आप पोटैटोज बॉईल करके हल्का सा मैश करके ऑलरेडी रख दें, एंड देन उसको हम जब मिक्स करते हैं देन वी यूज हॉट मिल्क और वार्म मिल्क टू यूज इट. तो ये इन गोज द 2 tablespoons ऑफ बटर एंड देन सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट. इसमें देखिए स्पाइसेस बहुत कम है. दिस इज अ वेरी प्योर काइंड ऑफ अ रेसिपी आई लाइक टू कॉल इट. बस वेरी मिनिमलिस्टिक स्पाइसेस में ये बहुत ही फ्लेवरफुल आपकी एकदम ये डिश बनती है. तो सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट हमने डाल दिया, एंड देन ये जो दूध है ये हम पूरा एक साथ नहीं ऐड करेंगे. इन बिट्स एंड पीसेस वी विल ऐड द मिल्क, एंड देन हम इसके साथ साथ ये जो हमारे रफली मैश्ड पोटैटोज थे ना इनको अब हम बढ़िया से विद द हेल्प ऑफ अ मैशर वी विल कीप मिक्सिंग दिस सो दैट जो हमारा जितना बटर है, अब देखिए बटर भी अगर आपका फ्रिज का भी है तो नो वरीज, क्योंकि दूध हमारा गर्म है. गर्म दूध जैसे ही बटर के ऊपर आप डालोगे तो वो ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा. ये इस तरह से हमने करना है, एंड पोटैटोज विल टर्न टोटली फ्लफी. ये फिर हमने थोड़ा सा और दूध डाला. दूध आप अपने पास थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें. मे बी द होल क्वांटिटी गेट्स यूज्ड और इट डजंट गेट यूज्ड, बिकॉज कई बार आपकी पोटैटोज की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कितना वो अब्जॉर्ब करेंगे दूध, एंड कितने दूध में यू गेट द रिक्वायर्ड फ्लफीनेस एंड द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी. सो दिस इज़ हाउ वी डू इट. थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हमें पोटैटोज को एकदम फाइनली मैश कर देना है, एंड वी हैव टू लेट देम बी फ्लफी. सो फ्रेंड्स ये देखिए पोटैटोज हमारे आर ऑलमोस्ट डन. दीज आर लुकिंग सो नाइस एंड लाइट एंड फ्लफी. बट इसमें जो फाइनल मिल्क है ना वो हम लोग जब हमारी वेजिटेबल्स रेडी हो जाएंगी, जब हमने इस पोटैटोज को वेजिटेबल्स के ऊपर लेयर करना होगा, हम उस स्टेज पे डालेंगे. अभी हम इतना अपना करके छोड़ देते हैं बिकॉज दिस इज वी आर डूइंग इट नाउ जस्ट टू सेव ऑन टाइम. अदरवाइज आपकी वेजिटेबल्स तैयार हो तब भी आप ये स्टेप कर सकते हैं. देन यू कैन डू इट ऑल एट वंस. सो नाउ लेट अस सी व्हाट द वेजिटेबल्स लुक लाइक. तो ये फ्रेंड्स देखिए अराउंड 4 to 5 minutes हो गए हमारी फ्लेम पे वेजिटेबल सिमर हो रही थी, एंड खुशबू यहाँ पे वो बेसिल की एंड गार्लिक की एंड द मशरूम्स जो हमारे सौते हुए विद द वेजिटेबल्स, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है. वेजिटेबल्स नाउ आर टोटली डन. ये थोड़ा सा सॉसी ही हमारा, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए. ये जिस तरह की अभी कंसिस्टेंसी है बस वैसी ही रहनी चाहिए. इस स्टेज पे अब हम वेजिटेबल्स को कर देंगे बंद, एंड नाउ वी विल प्रिपेयर द पाई. सो पाई प्रिपेयर करने के लिए जैसे भी मेरे पास एक ये पाई डिश है, मतलब जो भी बेकिंग डिश हो आप वो यूज़ कर लें. इसमें हम लोग अब नीचे की लेयर में ये सारी अपनी मज़ेदार स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल्स डालेंगे, विच बिलीव मी दे स्मेल अमेजिंग. इनको इस तरह से आप थोड़ा सा स्प्रेड कर दें एंड जस्ट पैट देम अ लिटिल सो दैट एक इवन सरफेस हम लोगों को मिल जाए.
और पोटैटोज हमारे वैसे बिल्कुल रेडी है, बट जस्ट बिफोर एडिंग हम एक पिंच ऑफ अपना 1 टेबलस्पून के करीब ये मिल्क और डालेंगे. वी गिव देम द फाइनल द swirl. ये देखिए इतने हमारे mushy and very nice and fluffy potatoes are ready. इनको अब आप blobs में just put them all over, इस तरह से blobs में डाल दो. ऐसे डालने से it becomes easier to spread these potatoes evenly. अगर कभी मान लीजिए आपके पोटैटो मिक्सचर थोड़ा सा कम हो गया एंड साइड से थोड़ी सी आपकी जो वेजिटेबल्स पीप आउट भी कर रही हैं, डोंट बॉदर एट ऑल. प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स थोड़ी सी वो हो जाती है, लेकिन टेस्ट इसका, बिलीव मी, द टेस्ट इज जस्ट ऑसम. सो इट डजेंट मैटर. कभी कभी होता है कि डिश आपकी बड़ी है, आपको अंदाज नहीं हुआ, पोटैटोज आपके कम रह गए, नेवर माइंड. सो ये बस देखिए ब्लॉब्स में अगर करने का ये फ़ायदा है, जब इतने फ्लफ़ी पोटैटोज़ होते हैं ना, तो फटाफट से ये देखिए हमारे पोटैटोज़ एकदम स्प्रेड भी हो गए. इसको अब हम ये स्पून से थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं. एक स्मूथ सरफेस हमारी आ गई. आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही बेक करने के लिए डाल दें, और अगर आप चाहें तो इन पोटैटोज़ में आप छोटा सा पैटर्न बना दें. पैटर्न अगर हमने बनाना है तो हम एक फोक लेंगे एंड ये यूं, एंड देन इसके साथ ऐसे, तो ये इस तरह का एक बहुत प्यारा सा पैटर्न भी बन जाता है. इट्स टोटली अप टू यू. आप प्लेन डालोगे, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस. एंड ऑफ कोर्स द मेन थिंग इज़ द टेस्ट. टेस्ट इसका, बिलीव मी, इज़ अमेजिंग. सो ये हमारा पैटर्न बन गया. सो द शेपर्ड पाई, द वेजिटेरियन वर्जन, इज़ रेडी नाउ टू बी सेट इन टू द ओवन. अब हम लोग इसको बेक मोड में डालेंगे फॉर about 20 minutes. We'll check it once around 15-18 minutes. It can take anywhere between 18 to 25 minutes. We want the surface to be browned. So I'm putting in the oven to bake. Oven के सेंटर में है बेकिंग रैक. उसके भी सेंटर में हमने इसको पुश इन किया. 190 डिग्री सेल्सियस पे ओवन प्री हीटेड है. So that's the shepherd's pie set to bake. While the shepherd's pie is baking, it's time for the tip of the day. So friends, now is the time for the tip of the day. जैसा कि आप सब जानते हो, मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक बहुत सिंपल आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ. आज का जो हमारा टिप है वो आर्किटेक्चर इंटीरियर मिक्स है. सो व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर हाउस, एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम लोगों से हो जाती है कई बार, वो है कि जो वेट एरियाज ऑफ द हाउस हैं, जैसे द किचन, द टॉयलेट्स एंड द बैल्कनीज, दीज आर द एरियाज जहाँ पानी का काम बहुत होता है, तो उसमें हम लोग लेवल डिफरेंस देना भूल जाते हैं. दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. इवन अगर आपकी बैल्कनी में स्लोप है टुवर्ड्स द ड्रेन पाइप, आपके टॉयलेट में ट्रैप की तरफ स्लोप है, किचन में सिंक की तरफ स्लोप है, तब भी अगर आपका वो लेवल डिफरेंस फ्रॉम द मेन हाउस नहीं होगा, तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि जो पानी है वो उन एरियाज में से आपके मेन हाउस में सीप कर जाए. सो माय टिप फॉर द डे इज कि इन तीनों एरियाज में, वट एवर द वेट एरियाज ऑफ द हाउस आर, द फ्लोरिंग शुड बी half an inch lower than the rest of the house की फ्लोरिंग. दिस ensures कि जो ये पानी है वो आपका अंदर घर की तरफ नहीं जाए, makes life much simpler. So with that, the tip of the day is over. I'll see you now in 20 minutes to show you what our shepherd's pie looks like. Till then, bye-bye. सो फ्रेंड्स, ये हम लोगों को बेक करते करते एक्चुअली 20 मिनट्स पे मैं एक बार आई थी, मैंने इसको देखा. सो जो पाई वाला पार्ट था हमारा वो बबल होके सेटल हो चुका था. एट दैट स्टेज बेक मोड के साथ साथ मैंने ग्रिल मोड भी ऑन कर दिया था, सो दैट ऊपर से हमारी पोटैटोज की ब्राउनिंग हो जाए. दैट आई डिड फॉर 5 मिनट्स. तो टोटल अब हमें 20 मिनट्स बेक प्लस 5 मिनट्स ग्रिल मोड में हो गए. अब लेट मी शो यू, आई विल पुट ऑफ द OTG एंड आई विल शो यू व्हाट दिस लुक्स लाइक नाउ. सो ये हम निकालें. स्मेल तो इतनी अमेजिंग आ रही है, एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल शेपर्ड्स पाई. सो इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जैसे बबल होके थोड़ी सी जो पाई हमारी सॉसी वाली जो बेस था वो भी ऐसे हल्का हल्का एजेस पे ऊपर आ जाता है. दैट इज जस्ट हाउ वी वांट इट. द पैटर्न ऑन द पोटैटोज लुक्स परफेक्ट, एंड जो हम एंड में ग्रिल करते हैं उससे अ वेरी नाइस गोल्डन ब्राउन कलर ऑन टॉप ऑफ द पोटैटोज आ जाता है. दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी वांट इट. So, wasn't this a simple recipe, friends? The very classy, the very one-pot meal. इसके साथ आपको कुछ नहीं चाहिए, full of nutrients. So this was the shepherd's pie, a very easy to make instant recipe. So that was the recipe for today. इसको एक बात याद रखिएगा, of course you have to have it warm, but not
immediately out of the oven. इस समय अगर हम इसको काटेंगे तो वो जो potatoes and pie का mixture है वो crumble होके it will spread. Just wait for about 7 to 8 minutes. Let it settle down. Let the steam escape. Only then you cut and have it. So that is the recipe for today. I'll see you again next Saturday at 7 p.m. with a new instant jhatpat si recipe. Till then, enjoy.